Bismillahirrahmanirrahim. Yes, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Said Ejaz Ahmed from High School Naugam. Today on 5th of July 2020, class 7th, and today's topic is a poem, Abu bin Adam, written by Dew Hunt, an English poet. My dear students, before we are going to recite the poem, I would like to summarize the whole poem. Abu bin Adam is sleeping peacefully when he wakes up and sees an angel writing something in a golden book, or we can say a book. The angel is writing the names of people who love God. Abu requests angel, and the angel told him that his name is not in the list. Abu requests the angel to put his name on the list of people who love their fellow men. The angel does so and vanishes. The next day, the angel reappears and shows Abu the names of people who have been blessed by God. Abu is pleasantly surprised to see that his name is at the top of the list. Dear students, Abu bin Adam is a man. Abu bin Adam is a man who is very peaceful man. अमन वाला इंसान था. तो उसके मुतलिक हमें लिखा है, ये पोएम लिखी है ल्यू हंट ने. मैं पोएम को पढ़ूंगा. जैसे मैंने आपको समरी में कहा कि अबू बिन आदम जो है एक दिन सोए हुए थे कमरे में. तो अचानक जब वो गहरी नींद से जाग उठे तो उसने चांद की रोशनी में क्या देखा कि एक एंजल कमरे में आया था, एक फरिश्ता कमरे में आया था और कुछ किताब पर लिख रहा था. और जब उसको अबू बिन आदम ने जब उससे कहा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ. द एंजल इज राइटिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु लव द गॉड. जो उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो किसको पसंद करते हैं, जो लव करते हैं किसको, गॉड को, खुदा को. तो अबू ने रिक्वेस्ट की, क्या मेरा नाम इसमें है? तो उसने कहा, एंजल ने वापस कहा कि नहीं, आपका नाम नहीं है. तो अबू बिन आदम ने फिर रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम भी उन लोगों में लिखो जो अपने खुदा को प्यार करते हैं. द एंजल डज सो एंड वेंजेस. एंजल ने ऐसा किया, फरिश्ते ने ऐसा किया और वो चला गया. द नेक्स्ट डे द एंजल रीअपियर्स. दूसरे दिन फिर एंजल कमरे में आ जाता है और अबू बिन आदम द नेक्स्ट डे द एंजल रीअपियर्स एंड शोज, और दिखाता है अबू बिन आदम को उन लोगों के नाम जिनको खुदा जिनको प्यार करता है, जिनको ब्लेस करता है. तो अबू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका नाम सबसे ऊपर में आ जाता है. ये पोएम है. ये पोएम हम पढ़ेंगे बच्चे, तो आप लिख लीजिए. अबू बिन आदम, आपकी किताब का पेज नंबर 55 आपको खोलना है, तो मैं पढ़ूंगा. Whom does God love the most? Abu bin Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold, exceeding peace had made bin Adam bold. And to the presence in the room he said, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered the names of those who love the Lord. And is mine one? Said Abu. Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee then write me as one, and that
Write me as one that loves his fellow man. The angel wrote and vanished. The next day it came again with a great weakening light and showed the names whom love of God had blessed. And Lu bin Adam's name led all the rest Liu Hunt. May more. These are the words. Here you can see, may his tribe increase means may more and more people become like him. The rich here means beautiful. Rich as Amir, magar in this poem, rich is used as for beautiful, खूबसूरती के लिए. Exceeding peace means complete silence. Prisoners, something that cannot usually be seen, but is felt to be near. Here the angel. Here it is angel. Here are some words. What writes to? An old-fashioned way of saying, what are you writing? Writes to, an old-fashioned way of saying that, what are you writing? Vision, something that is seen as if in a dream. Accord, complete peace. Nay, an old-fashioned way of saying no. Cheerily, cheerfully, pleasantly. Pray, an old-fashioned way of saying ask or request. तो प्यारे बच्चे, हम अब लाइन टू लाइन इससे समझने की कोशिश करेंगे. Whom does God love the most? खुदा किस से सबसे ज्यादा प्यार करता? Whom does God love the most? खुदा किस से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? अब नीचे यहां पे कहते हैं, उबू बिन आदम may his tribe increase. उबू बिन आदम का कबीला, ट्राइब माने कबीला, बढ़ता जाए. उबू बिन आदम, खुदा करे उबू बिन आदम का कबीला बढ़े. वी आर फ्रॉम आदम, हम भी आदम से, हम आदम को इंसान. Evoke one night from a deep dream of peace. जाग उठा. उबू बिन आदम, one night he was sleeping in a deep dream. When he woke up, he saw. उसने क्या देखा? Within the moonlight in his room. चांद की रोशनी में उसने देखा अपने कमरे में. Room means कमरा. यानी एक रात जब वो सोया हुआ था तो चांद की रोशनी में उसने एक कमरे में देखा. Making it rich, जो उससे खूबसूरत बना रही थी. चांद की रोशनी उससे मुनव्वर कर रही थी. Just like a lily, जिस तरह एक नरगिस का खिला हुआ फूल था. उबू बिन आदम को चांद की रोशनी इतना खूबसूरत मुनव्वर कर रही थी जैसे नरगिस का फूल खिल रहा था या खिला हुआ था. An angel writing in a book of gold. और उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि एक फरिश्ता लिख रहा था सुनहरी किताब में. बुक ऑफ गोल्ड, वी कैन से सोने की किताब, और वी कैन से एक सुनहरी किताब में लिख रहा था. क्या लिख रहा था? एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन आदम बोल्ड. इस अमन बेपनाह सुकून ने, एक्सीडिंग बेपनाह सुकून ने, पीस को सुकून ने आदम को क्या बना? निडर बनाया था. बोल्ड को निडर बनाया था. यानी बहुत ज्यादा अमन ने आदम को क्या बनाया था? निडर बनाया था. और उसने कहा, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. और कमरे में मौजूद इस हस्ती को उसने कहा, हु वाज देयर इन हिज रूम? एन एंजल वाज, यस, एन एंजल वाज देयर इन हिज रूम. तो बेपनाह शांति ने, बेपनाह सुकून ने वो भी आदम को निडर बनाया था. तो उसने उस हस्ती को पूछा, व्हाट राइट दो. मैंने ये कहा कि ओल्ड फैशनड वर्ड है, व्हाट आर यू राइटिंग. यानी व्हाट राइट दो, मैंने व्हाट आर यू राइटिंग. उसने उस फरिश्ते से कहा कि आप क्या लिख रहे हो. द विजन रेज्ड इट्स हेड. विजन हियर मीन्स एंजल. विजन मीन्स एंजल. यानी यहाँ पे विजन ने, फरिश्ते ने अपना सर ऊपर किया. एंड विद अ लुक मेड ऑल स्वीट अकॉर्ड.
लिख रहा है क्या आप? इसने और पूरी मिठास शफकत से भरे हुए चेहरे के साथ उसने कहा, क्या कहा? आंसर्ड द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। उसने बड़ी खुशी से, बड़ी मिठास भरे, शफकत भरे चेहरे से कहा, कि जवाब दिया कि मैं लिख रहा हूं उन लोगों का नाम जो अपने लॉर्ड को, जो अपने गॉड को, अपने खुदा को क्या करते हैं? लव करते हैं। एंड इज माइन वन, क्या मेरा इसमें है? एंड इज माइन वन, और क्या मेरा नाम वहां है? एंड इज माइन वन सेट उबू, ने नॉट सो। तो उबू ने कहा कि नहीं, क्या मेरा नाम है? तो एंजल ने वापस कहा, नहीं, नॉट सो, नहीं, आपका नहीं है। क्या उबू ने कहा? नहीं रिप्लाइड द एंजल, उबू स्पोक मोर लो। लेकिन फिर इसने जब ऐसा कहा कि आपका नाम नहीं है, उबू और हलीमे से बोला, और लो आवाज से बोला। एंजल ने कहा कि आपका नाम इसमें नहीं है। उबू ने फिर लो वॉइस में कहा, बट cheerly still and said, I pray thee then। लेकिन फिर भी खुशी के साथ, और उसने इल्तिजा की। बट cheerly, खुशी के साथ इसने इल्तिजा की। क्या की? तो मेरी इल्तिजा है आपसे। एंजल से कहा, खुशी के साथ मुस्कुराते हुए उबू बिन आदम ने एंजल से कहा, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। लिख दीजिए मेरा भी नाम। राइट मी एज वन, मेरा भी लिख दीजिए उनमें जो करते हैं अपना प्यार इंसानों से। यानी मेरा नाम भी उनमें लिखिए जो करते हैं, जो करता है प्यार किन से? इंसानों से। द एंजल रोट एंड वैनिश्ड। एंजल ने ऐसा लिखा और वो चला गया। द नेक्स्ट नाइट, दूसरी रात जब आए, इट केम अगेन विद ए ग्रेट वेकनिंग लाइट। लिख दिया फिर इसे और गायब हो गया। अगली रात आया, वो जब आया फिर तेज जगा देने वाली रोशनी लेके, तेज वेकनिंग लाइट में तेज जगा देने वाली रोशनी। एंड शोड द नेम्स, और क्या दिखा दिया? नाम दिखा दिया। होम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, उन लोगों का नाम दिया जिन्हें उनका गॉड बहुत ब्लेस करता था। और दिखाए वो नाम उसे जिन्हें मिला था खुदा का प्यार। जिन्हें वो लोग, उन लोगों का नाम दिया, उन लोगों का नाम दिखा दिया उबू बिन आदम को फरिश्ते ने दूसरी रात, जिन्हें उनका खुदा बहुत प्यार किया, ब्लेस करता था, प्यार करता था। एंड लो बिन आदम's नेम लेडर ऑल द रेस्ट। और क्या क्या हो गई बात कि उबू बिन आदम का नाम इस वक्त सबसे ऊपर में था। तो प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे ये समझ बैठे हैं कि जो पोएम है ये स्पिरिचुअल पोएम है। तो जो हमें ये कहते हैं कि हमें अपने गॉड से हमेशा लव होना चाहिए, और गॉड हमें लव करता रहेगा। तब ये पोएम आपको फिर एक बार पढ़नी है घर में, फिर इसके क्वेश्चन